Welcome to chapter 9 of Science, Heredity and Evolution. This is one of the most interesting chapters because it does not have any fancy formulas or technical concepts, and it is very much applicable to real life. You will understand a lot about the world around you in biology. Introduction has a lot of words, half of which you know and half of them you don't know. We have seen that reproductive process give rise to new individuals that are similar but subtly different. Subtly different matlab slightly different. When any organism reproduce, whether it is a pigeon or a peacock, whether it's penguin or a whale or even a human being, रिप्रोडक्शन का मतलब है नए इंडिविजुअल्स को जन्म देना। और नया इंडिविजुअल क्या 100% अपने माँ बाप जैसा होता है? नहीं। नो टू पीकॉक्स आर अलाइक। हमारी नज़र में हमको पता है कि ये सब सेम दिखता है, बट दे इंटरनली नो ईच अदर. They know how to identify that this is peacock 1, that is peacock 2. So all life on this planet which is generated by reproduction are slightly different. And this slight difference is called variation. And these variations are produced during asexual reproduction, and they are also produced during sexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सिर्फ मदर एंड डॉटर्स होते हैं. सो मदर्स गिव राइज टू डॉटर्स, डॉटर्स ग्रो अप एंड बिकम मदर्स एंड अगेन गिव राइज टू डॉटर्स. देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ मेल. मेल फीमेल या जेंडर होता ही नहीं. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स मोर वेरिएशंस विच आर विजिबल अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स. So human being का एग्जाम्पल ले लो. ह्यूमन बींग्स आर सेक्शुअली रिप्रोडक्टिंग organism, and because of this the variation is so much that even a dog and cat can identify that this human is different and this human is different. So we will be studying inherited characters, we will be studying evolution in this chapter, etc, etc. So let's enter the chapter. The first topic, we will understand what is variation. Variation को अगर दो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है तो आई वुड से स्लाइट चेंज. Now this slight change has two perspectives. The slight change is in genes and the slight change is in physical structure, मतलब जो बाहर दिखता है. Look at this. This is just a random geometrical structure. This is an individual which looks like this, completely blue. ऊपर ओवल, नीचे रेक्टेंगल और साइड में दो ओवल्स with some fancy attachments. But when this individual mother give birth to two daughters, both of the daughters are slightly different from mother. बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये रेड कलर हो गया, ये ग्रीन कलर हो गया. When this red headed daughter becomes a mother and gives birth to two daughters, new changes come into picture. When this becomes a mother and gives birth to more daughters, new changes come into picture. This process of automatic change from generation to generation is called variation. They are not 100% same. Genetically, inside the body, they are not 100% same, and even outside, they are not 100% same. So this slight change is called variation. Look at this example. They are all giraffes. All have same basic structure.
10 किलोमीटर दूर से पता चलता है ये जिराफ है, बट दे आर ऑल डिफरेंट. They are all giraffe, but they are all different. And these slight differences among them is variation. Generation to generation थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए, और वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में आते गए. नेक्स्ट जनरेशन खुद के चेंजेस लेके आए, एंड लाइफ हैज डेवलप्ड ऑन दिस प्लानट. सो वेरिएशन इज slight changes between individuals, whether they are brother sister or mother father or daughter son, whatever. Minor changes are called variations. This is another example. एक ब्राउन रैट, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है. एनी फोटोग्राफ इन दिस चैप्टर इज आउट ऑफ सिलेबस. टेक्स्ट बुक का है तो प्रॉपर करने का. एक ब्राउन रैट और एक ब्लैक रैट जब बच्चे पैदा करता है, तो तुम देख सकते हो कि कुछ बच्चे ब्लैक है, कुछ बच्चे ब्राउन है, एंड दे आर नॉट 100% अलाइक ऑल्सो, एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. वाई इज दिस वेरिएशन कमिंग इन टू पिक्चर? द रीजन इज जीन्स. जीन्स मतलब डीएनए. एंड द वे आवर वर्ल्ड इज डेवलप्ड, हर एक जीन की पेयर होती है. नाक का शेप, तो नाक का शेप का एक पर्टिकुलर जीन है जिससे नाक का शेप डिसाइड होता है, और वो 2 कॉपीज है. पापा के पास 2 कॉपीज है, मम्मी के पास 2 कॉपीज है. एंड व्हेन मदर एंड फादर क्रॉस एंड रिप्रोड्यूस, तो बच्चे के पास भी 2 कॉपीज आएगी, एक पापा में से एक मम्मी में से. So every living being on this planet has 2 copies of same gene. One of the copies has come from father and one has come from mother. और वो दोनों का मिला जुला मिश्रण ये नेक्स्ट जनरेशन होती. तो देखो, ब्राउन के पास कैपिटल बी है, तो कुछ बच्चों में कैपिटल बी गया है. बट ब्राउन के पास छोटा बी भी है, तो कुछ बच्चों में पापा से छोटा बी पहुंचा है. बट मम्मी के पास सिर्फ छोटा बी है, सो ऑल मदर कैन गिव टू द चाइल्ड इज स्मॉल बी. So now I think you could guess that why the black mouse are black. ये बच्चे ब्लैक क्यों है? क्योंकि दोनों जीन्स पापा और मम्मी के जो आए हैं वो दोनों स्मॉल बी है. बट 2 बच्चे ब्राउन कैसे हो गए? बिकॉज बाय चांस उसमें पापा का कैपिटल बी आ गया. तो पापा ब्राउन है बिकॉज ऑफ कैपिटल बी, इसलिए 2 बच्चे भी ब्राउन हो गए क्योंकि उनमें कैपिटल बी आया है. और कौन से बच्चे में कौन सा जीन जाएगा, दैट इज अ नेचुरल थिंग. इट्स फ्लूक, इट्स रैंडम, इट्स लाइक अ कॉइन टॉस. Inheritance. Inheritance from the previous generation provides both a common basic body design and subtle changes in it for the next generation. Now think about what would happen when this new generation in its turn reproduces. The second generation will have differences that they inherit from the first generation as well as newly created differences. मतलब मम्मी पापा जब बच्चे को पैदा करते हैं तो वो बच्चे के अंदर मम्मी और पापा दोनों के गुण तो है ही, बट कुछ गुण खुद के डेवलप होते हैं. फिर वो बच्चा जब किसी और के साथ पेयर बना के रिप्रोड्यूस करता है तो उसके सारे गुण नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, प्लस देयर आर सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, एंड दीज न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स कीप ऑन इवॉल्विंग, दे कीप ऑन accumulating, because of which evolution takes place. Figure 9.1 would represent the situation if a single individual reproduces, as happens in asexual reproduction. मैंने कहा ना asexual में सिर्फ मदर डॉटर होती. तो फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ द टेक्स्ट बुक, दिस वन, मदर gave birth to 2 daughters.
तो मदर का पूरा स्ट्रक्चर डॉटर में तो चला गया, लेकिन डॉटर ने अपना कुछ वैरायटी पैदा की, ग्रीन बेस। अब ये ग्रीन बेस वाली मदर जब पैदा करेगी बच्चों को, तो उनमें ग्रीन बेस तो आएगा, बट और कुछ अलग खूबी भी आएगी, एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. So more you reproduce, more variation comes into picture. But the differences are minor. मतलब एक रैट है तो उसके बच्चे रैट ही होने वाले, उसके बच्चे भी रैट, उसके बच्चे भी रैट, बट स्लाइटली डिफरेंट रैट. And that slight difference can be skin color, height, body, mustache, resistance to diseases, body temperature, anything but a slight change will happen. और कभी कभी वो चेंज दिखता भी नहीं. हमको सारे चूहे सेम दिखते, बट दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर स्लाइटली. तो क्वेश्चन अराइजेस कि ये चेंज आता कहां से, वेयर डज दिस चेंज कम फ्रॉम. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग विच इज वेरी डीप. तो बहुत ध्यान से देखना, सुनना और समझना. मॉम हैज एग, एग हैज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब डीएनए. डैड has a sperm, and sperm also carries chromosome, means DNA. स्पर्म के अंदर डीएनए आया कहां से. डैड की बॉडी में, डैड जब पैदा हुए थे तो उनकी बॉडी एक सेल की थी. द फादर वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ हिज मदर एंड स्पर्म. और मम्मी जब पैदा हुई थी तो मम्मी उसके मम्मी पापा की कॉम्बिनेशन थी, एग एंड स्पर्म. तो दादा दादी का पापा में है, नाना नानी का मम्मी के अंदर है डीएनए. नाउ द मॉम फ्रॉम वन सेल became 1,000 cells. From 1,000 cells, it became a million cells. From million cells, it became a fetus. और 9 महीने बाद मम्मी ने जन्म लिया. सेम फॉर फादर. ये सेल 1 से 2, 2 से 3 डिवाइड होते. एंड व्हेन सेल्स डिवाइड फ्रॉम अ सिंगल सेल टू अ मिलियन सेल, ये मिलियन आए कहां से, दे आर जेरोक्स कॉपीज. So the first master copy of DNA is copied a trillion zillion times during our life, and that's how we survive. So my body has billions of cells, and every cell has the same duplicate Xerox copy of DNA from the first cell. जब मैं एक स्पर्म और एग का कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन का डीएनए की जेरोक्स निकाल निकाल के मैं बड़ा हुआ. अब ये दोनों बड़े हो चुके हैं, एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड एग एंड स्पर्म. तो एग के अंदर डीएनए आया कहां से, इट इज अगेन अ जेरोक्स कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डीएनए. स्पर्म के अंदर डीएनए कहां से आया, इट्स अ जेरोक्स ऑफ प्रीवियस डीएनए जो डैड के अंदर पहले से था. द प्रॉब्लम विथ जेरोक्सिंग द डीएनए इज every time you take a Xerox, a slight error happens. कॉपी करने में एरर क्रिएट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गूगल फेक टेक्स्ट, इट विल गिव यू अ वेबसाइट जो नकली टेक्स्ट क्रिएट करता है, जिसको तुम कॉपी पेस्ट करके कहीं भी डाल सकते हो. दिस इज senseless words. It's called lorem ipsum. मान लो
कि ये डीएनए है, डीएनए का कोड है, एंड दिस डीएनए कोड हैज टू बी कॉपीड विथ हैंड। तो मैं शुरू करता हूं, लोरेम इप्सम डोलोर, DOL, देखा मिस्टेक हुई, डोलोर मैंने करेक्ट कर ली, सिट आमेट कॉमा कॉन्सेक्टिटोर। ये कॉपी कर, ये एक बार कॉपी है। इमेजिन कि तुम 1 करोड़ बार इस पैराग्राफ को कॉपी करते हो जिसका कोई सेंस नहीं है। उस कॉपी में एरर होता है, एंड इट्स अ नेचुरल एरर, इट्स अ मिस्टेक, एंड दैट मिस्टेक in the DNA creates new feature. UT was responsible for this shape of the nose, but copy करते समय TT हो गया, तो उसका नाक का शेप थोड़ा बदल गया, बट है तो उसी का बच्चा, but slight change happens. So whenever DNA is copied, DNA is literally millions of अल्फ़ाबेट्स का कोड, और वो कॉपी करने में एरर होता है हर बार, कंपलसरी, बिकॉज इट्स बिग। और वो एरर कभी बकवास एरर होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कभी वो एरर क्रिटिकल होता है, एंड दैट क्रिटिकल एरर क्रिएट्स अ स्लाइटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो डीएनए कॉपिंग में जो एरर है, उसकी वजह से द नेक्स्ट जनरेशन शोज वेरिएशन। सो वेरिएशन आर माइक्रोस्कोपिक डिफरेंसेस। तो ये इतने सारे कलर के जिराफ आए कहां से? एक ही जिराफ में से, एक में से इतने सारे, बट इट हैज नॉट हैपेंड इन 1 year or 5 years. It has taken millions of years of generation to generation, generation to generation, and that errors also have continued. तो यूटी का टीटी हो गया तो नाक चेंज हो गया, बट जब ये बच्चा पैदा करेगा और करेक्ट कॉपी हुआ तो नेक्स्ट सारी जनरेशन टीटी हो जाएगी। सो एरर्स हैपन एट डिफरेंट प्लेसेस इन द डीएनए बिकॉज ऑफ विच वेरिएशन अकर्स। अब ये एरर बैक्टीरिया लेवल पे कम होता है, and there are multiple reasons. Bacteria produces asexual, और asexual reproduction का DNA छोटा होता है, और छोटा DNA कॉपी करने में एरर्स कम होते हैं। Therefore, the first bacteria and जनरेशन के बाद का लास्ट बैक्टीरिया में ज्यादा फर्क नहीं, बहुत माइनर फर्क है। But instead of asexual reproduction, if it was sexual reproduction, तो क्या होगा? मॉम और डैड, मॉम और डैड का डीएनए मिक्स होगा, एंड व्हेन 2 different DNAs mix, the chances of variation increases, and that's why sexual reproduction organs में we see more variety. तो जिराफ में इतने कलर्स, ये सच है बिकॉज जिराफ इज अ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। बट बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखो तो ज्यादा वेरिएशन दिखते नहीं है, बिकॉज बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। देयर आर लिटरली हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैट्स। 100 टाइप्स आई कहां से? एवरीथिंग केम फ्रॉम दैट वन रैट, बट बिकॉज इट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मदर एंड फादर, तो चेंजेस फास्ट हो जाते हैं। तो जितना भी तुम पृथ्वी पे डाइवर्सिटी देखते हो, इतने सारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ वेरिएशन। Do all these variations in species have equal chance of surviving in the environment which they find? No. Some variations are bad. कुछ वेरिएशंस खराब होते हैं जिससे वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ताकि वो खराब वेरिएशन
नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करने से पहले मर गया. So you and me know that there are some children who are born with abnormalities, deformities. किसी का हार्ट नहीं है, किसी को आंख नहीं है, and those deformed children, they live, but they don't live a healthy life and they don't reproduce. तो नेचर ने एक अच्छा काम किया है कि वीक ऑर्गेनिज्म वो आगे बढ़ ही नहीं पाता. देयरफॉर ओनली द बेस्ट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस एंड द नेक्स्ट जनरेशन इज इवन बेटर. तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक वेरिएशन अच्छा हो, और बुरे वेरिएशन मर जाते हैं, इसलिए वो नेक्स्ट जनरेशन में बुरे वेरिएशन आती ही नहीं. तो लुक एट अस ह्यूमन बींग्स. वी ऑल कैन स्पीक विच नो स्पीसीज ऑन द प्लानट कैन स्पीक. We can think which nobody else are so powerful with their brains. Why? Because every next human being is smarter than the earlier one. टच फोन, मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट 200 साल पहले क्यों नहीं आया? Because they were not as smart as we are. So every next generation, biology improves the species. And it all depends on what kind of variations come. And the species will slowly take a turn. एक ज़माने में हमारी पूंछ थी, चली गई. एक ज़माने में we used to have a back like this, but now we have a straight back. All this is because of the next individual who is better and better and better. और हर एक इंडिविजुअल अपना खुद का एक एडवांटेज लेके आता है, और वो एडवांटेज नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है थ्रू डीएनए. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस आर देयर विच गोज टू द नेक्स्ट जनरेशन. फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर हीट सेंसिटिव, बहुत गर्मी में मर जाते. बट एवरी नेक्स्ट जनरेशन स्लाइट चेंज इन डीएनए, स्लाइट चेंज इन डीएनए होते 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 2 करोड़ साल बाद एक ऐसा बैक्टीरिया आया दैट कैन विथस्टैंड द हीट. बहुत गर्मी पड़ी, सब बैक्टीरिया मर गए, वो एक बच गया, और वो जो एक बचा उसने जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा की वो सब हीट रेजिस्टेंस ही, तो दे कुड लिव इन दैट हीट. सो we'll see more about how evolution takes place and all that. Now next topic is heredity. Heredity or inheritance is similar. Heredity એટલે माँ बाप थी મળેલી વસ્તુ. ये मेरा नाक, ये मेरी हाइट, मेरा फेस is all heredity. It has been coming from generation to generation. Do I look like an Australian? Obviously not. My skin is not fair, my height is not 6 feet, my build structure is weak and small. क्योंकि मेरे पेरेंट्स के डीएनए में ऑस्ट्रेलियन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे ही नहीं. एंड डज एन ऑस्ट्रेलियन लुक लाइक अ चाइनीज? नो. सो वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव आवर ओन सेट ऑफ डीएनए which is being passed from generation to generation, and that's why we are the way we are, thanks to our DNA. The most obvious outcome of reproductive process still remains the generation of individuals of similar design. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Let's take a closer look. थोड़ा स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट ये कहना चाहता है रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बच्चा, नेक्स्ट जनरेशन, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. You don't reproduce to create better organisms. माँ और बाप मिलके बच्चे पैदा करते हैं, तुमको पैदा किया है, वो ये सोच के नहीं किया है कि हमसे बेटर बनेगा. उनको एक बच्चा चाहिए. प्लैनेट पे लाइफ कंटिन्यू ऐसे ही होती है, इसलिए किया है. बट द साइड बेनिफिट इज, जो मेरे केस में था, माई पेरेंट्स बोथ आर शॉर्टर देन मी. I'm taller than both of them. So I became better in terms of height. But they did not intentionally do it. कि चलो बच्चा पैदा करते हैं, लंबा होगा. They wanted a kid, they had a kid. And the kid had variations, slight differences from their parents, and that slight difference was good that I am taller than both of them. Inherited traits.
What exactly do we mean by similarities and differences? We know that a child bears all the basic features of human being. However, it does not look exactly like its parents, and human populations show a great deal of variation. इनहेरिटेड ट्रेड्स का एक लिमिट होता है. हेरिडिटी में तुम्हारे आंखें आती है, नाक आता है, मुस्कान आती है, थोबड़ा आता है, बाल होते हैं, बाल का कलर होता है. बट आई कलर, नाक का शेप, स्किन कलर, स्वभाव, ये डिफरेंट हो सकता है. सो सिमिलैरिटीज तो है ही. दैट्स वाई यू आर ह्यूमन, यू आर सिमिलर टू योर पेरेंट्स. बट डिससिमिलैरिटीज भी है. देयरफॉर यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो. लुक एट दिस ईयर्स. ये सारे अलग अलग टाइप के कान हैं. सम आर फ्री ईयर, some are attached earlobes, and this is the result of variation. करोड़ों सालों से humans are reproducing और धीरे धीरे चेंजेस होते हैं. तो आज ये 11 टाइप के कान के फैमिलीज है. There are 11 types of ears which we can classify. कान तो कान है, अलग कैसे हो गया? Slight change in DNA. Let's understand this now. I have already told you that every human being or a higher animal has pair of genes. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए 2 डीएनए होते, जोड़ी. क्यों मत पूछना, बट होते. मेरी स्किन कलर जिस डीएनए की वजह से है उसकी 2 कॉपीज है. मेरे नाक का नक्शा, मेरे आई का कलर, मेरे बालों का कलर, my height, my nature, all this thanks to these pair of genes, where one comes from the mother and one comes from the father. Pair of genes, I can say pair of chromosomes also. तो एक्चुअली ये X क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम को जब एनलार्ज करके देखो तो क्रोमोसोम के अंदर अलग अलग जीन्स होते हैं. जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5. ये रेस्पॉन्सिबल फॉर नाक का नक्शा, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयर कलर, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइट. एवरी जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. और ये सारे जीन्स का आउटकम तुम और मैं है. तो हम जैसे हैं वो हमारी जीन्स के वजह से. एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. जेंडर मेल और फीमेल तुमको समझ में आना चाहिए. मेल फीमेल टुगेदर रिप्रोड्यूस विच इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मदर एंड फादर क्या होता है तुमको पता है. जीन डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. लेट्स लुक एट दीज टॉपिक्स वन बाय वन. रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. एक साइंटिस्ट तो नहीं बोल सकते. मेंडल वॉज अ पर्सन who was a father of a church, but he was very interested in botany. उसको प्लांट्स में बहुत इंटरेस्ट था. तो चर्च के गार्डन में वो बहुत सारे प्लांट्स उगाता था. मैं भी, मेरे पास 250 प्लांट्स है. बट आई ग्रो प्लांट्स टू बी हैप्पी. बट ही वॉज ग्रोइंग प्लांट्स टू स्टडी देम, टू फाइंड आउट why some plants are tall and some plants are short. Mendel is the father of genetics. जितना भी जेनेटिक्स और डीएनए रिलेटेड एडवांस्ड साइंस है आज, that is thanks to Mendel who started it. And he gave the rules for inheritance. The rules of inheritance for such traits in human beings are related to the fact that both father and mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. माँ और बाप अपने बच्चे को सेम अमाउंट ऑफ डीएनए देता है, आधा मम्मी से आधा पापा से. Therefore you are partly like mother and partly like father. Let's say तुम्हारी आंखें पापा जैसी है और तुम्हारे नाक का नक्शा मम्मी जैसा है. क्यों नाक पापा जैसा नहीं है? क्यों आंख मम्मी जैसी नहीं है? That question nobody could answer. But Mendel
आंसर्ड इट। मेंडल ने क्या कहा? पापा के अंदर 2 क्रोमोसोम्स है, मम्मी के अंदर 2 क्रोमोसोम्स है, और ये दो में से कुछ डोमिनेंट होते और कुछ रिसेसिव। पापा के दोनों डीएनए ब्लू है, मम्मी का एक रेड है और एक ब्लू है। पापा जब स्पर्म बनाएंगे तो आधा डीएनए इधर आधा इधर हो, और मम्मी जब एग बनाएगी तो आधा एक एग में रेड होगा और दूसरे एग में ब्लू डीएनए होगा, बिकॉज मम्मी का आधा डीएनए ब्लू है। सम ऑफ द स्पर्म्स विल फर्टिलाइज सम ऑफ द एग्स। कौन सा स्पर्म कौन से एग को फर्टिलाइज करेगा वो तो जानना मुश्किल है, बट अगर ये स्पर्म और ये एग ने बच्चा बनाया तो इस बच्चे का आधा डीएनए ब्लू और आधा रेड होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, विल दिस चाइल्ड लुक लाइक मदर और फादर? वी आर टॉकिंग अबाउट से आई कलर। तो मम्मी की आंखों का कलर रेड है, पापा के आंखों का कलर ब्लू है। बच्चे का आई कलर रेड निकला तो अ लॉजिकल पर्सन वुड से, ओ वाव, योर आईज आर लाइक योर मदर। बट वाई? द रीजन इज, आई कलर के मामले में जस्ट वन फीचर, आई कलर, नथिंग एल्स। आई कलर के मामले में मम्मी का डीएनए वॉज डोमिनेंट और पापा का डीएनए रिसेसिव, दब गया, दिखा ही नहीं। तो मेरे अंदर ब्लू आइज का डीएनए है, पापा से आया है, बट आइज मेरी मम्मी जैसी है, बिकॉज जब मम्मी और पापा का डीएनए साइड बाय साइड पेयर बनी तो डोमिनेंट डीएनए वाज मदर्स डीएनए। तो दुनिया के हर एक फीचर के लिए 2 डीएनए है, और 2 में से जो डोमिनेंट है वो दिखता है और जो डोमिनेंट नहीं है वो दब जाता है, मतलब रिसेसिव। कंटिन्यूइंग द रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, this means that each trait એટલે quality, eye color, nose, hair, height, each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA। तुम्हारे शरीर का हर एक हाव भाव माँ और बापूजी दोनों के डीएनए का इन्फ्लुएंस हो सकता है। Thus, for each trait there will be 2 versions in each child, father's version, mother's version। What will then the trait seen in the child be? चाइल्ड में दिखेगा क्या बाहर से? मम्मी का डीएनए दिखेगा कि पापा का? उसका लॉजिकल आंसर मेंडल भाई साहब ने दिया था, जो आंसर है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो जिसका जीन डोमिनेंट है वो दिखेगा, जिसका जीन रिसेसिव है वो नहीं दिखेगा। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस इज अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पास हाइट का खुद का डीएनए जीन है, जया बच्चन के पास खुद का हाइट का जीन है जो अपने अपने पेरेंट्स से आया है। व्हेन अमिताभ बच्चन 6 फीट, जया बच्चन 5 फीट, मैरिड, अभिषेक बच्चन आया, एंड अभिषेक बच्चन इज सो मच सिमिलर टू हिज फादर। आवाज पापा जैसा, लुक्स पापा जैसे, हाइट पापा जैसा। मतलब कंपेयरिंग जया बच्चन डीएनए एंड अमिताभ बच्चन डीएनए, हाइट के मामले में अमिताभ डीएनए इज डोमिनेंट, वॉइस के मामले में अमिताभ डीएनए इज डोमिनेंट, बट नेचर अभिषेक बच्चन का जया बच्चन जैसा है। बिहेवियर, तो जो नेचर का डीएनए है वो मम्मी का डोमिनेंट था तो वो मम्मी जैसा है।
So partly he is like mother, partly he is like father, and it all depends on what is dominant and what is not, जिसका कोई प्री डिसाइडेड फॉर्मूला नहीं. ग्रेगोर जोहान मेंडल वियना में रहता था, और वियना में फादर का काम करता था इन अ मोनेस्ट्री, उनका जो चर्च टाइप होता. एंड इन दैट मोनेस्ट्री ही स्टार्टेड ग्रोइंग पीस, વટાણા. અને વટાણા ઉગાડતા ઉગાડતા એટલું સરસ સ્ટડી કરીને he gave the laws of inheritance. Mendel used a number of contrasting visible characters of garden peas, round and wrinkled, tall and short, white and violet, and so on. મેન્ડલ ને क्या किया? બહુ બધા વટાણા ઉગાડ્યા, અને વટાણામાં ઘણી વેરાયટી છે. રાઉન્ડ સીડ, wrinkled seed, tall plant, short plant, white flower, violet flower. और वो खोज में निकल पड़ा कि क्यों कुछ फ्लावर्स वाइट होते और क्यों कुछ वायलेट होते. हाउ डिड ही डू दिस? बाय क्रॉसिंग देम. क्रॉसिंग એટલે પરણાવવું, લગન કરાવો. અને બે પ્લાન્ટના લગન કરાવો એટલે નેક્સ્ટ જનરેશન પેદા થશે, અને નેક્સ્ટ જનરેશન કેવી છે એના પરથી એણે બધું કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યું. સો ધીસ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ ઇઝ all possible differences in a pea plant. Flowers can be purple or white. Plants can be tall or short. Seeds color can be yellow or green. Seeds can be yellow or round or wrinkled shape. Pod color can be green or yellow. Pod shape can be full or flat. And flower position can be axial or terminal. વચ્ચે ક્યાંય ફ્લાવર આવે છે કે ટીપ પર. આ બધા કેરેક્ટર્સ તો મને બી દેખાય. મેં કો तुम 200 પ્લાન્ટ દે કે बिठा दो, બોલે આ બધાના ડિફરન્સીસ લખી નાખતો, તો જોઈને લખું એ પર્પલ ફ્લાવર, વ્હાઇટ ફ્લાવર લખો, આમાં રાउंड सीड, આમાં रिंकल्ड લખो. वो मैं लिख सकता हूँ, बट मुझे नहीं पता कौन सा डोमिनेंट है. जो तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि क्यों अमिताभ की हाइट आई, जया की क्यों नहीं आई, क्यों जया का डीएनए रिसेसिव है, वो नहीं बता सकते, बट है ऐसा नेचर में that some are dominant and some are recessive. This is the real pea plant. You can see the purple flower, white flower in a pods, वटाना, गोड, ग्रीन, wrinkle वगैरह वगैरह. ये वही फोटो है, इसमें और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का डिटेल है. तो शांति से देखो तो राउंड सीड, रिंकल्ड सीड, येलो सीड, ग्रीन सीड, व्हाइट फ्लावर, पर्पल फ्लावर, फुल फॉर्म, कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म, ग्रीन पॉड, येलो पॉड वगैरह वगैरह. और ये सब कुछ मेंडल ने सालों स्टडी करने के बाद ही पब्लिश्ड इन वन साइंटिफिक मैगजीन ही स्टडी. और जब पब्लिश हुई तो द एंटायर वर्ल्ड वॉज हैप्पीली सरप्राइज्ड that what a wonderful job he has done. He explained to the world and he was able to predict. उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि दुनिया का कोई भी पी प्लांट मुझे दो अलग अलग, मैं तुमको बता सकता हूं कि उसका बच्चा कैसा होगा, बिकॉज ही स्टडीड द डीएनए विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट टेक्नोलॉजी, जस्ट बाय ग्रोइंग देम. खाली वटाણા ઉગાડીને he is a world famous scientist. So you can also do that. बट उसके लिए चाहिए डेडिकेशन, जो मैक्सिमम तुम्हारी जनरेशन के बच्चों में है ही. ભણવા પ્રત્યે ડેડિકેશન ઝીરો, ગેમ પ્રત્યે ડેડિકેશન ઝીરો. સ્પોર્ટ્સ કોચિંગમાં જાઓ તો બી તમે એબસેન્ટ રહેશો, આળસ કરશો, कुछ भी कर रहे हो, डेडिकेशन नहीं होगा तो सक्सेसफुल नहीं होगे. ऑलराइट, इनफ ऑफ भाषण. अब ये इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन फ्रॉम हियर. This is how I will explain. मेंडल के पास 200 प्लांट्स थे. गप्पा नहीं, 200 में से 100 टॉल थे,
और 100 शॉर्ट थे। उसने ये 100 प्लांट को अंदर अंदर क्रॉस करा के उगाया। कुछ टॉल निकले, कुछ शॉर्ट, कुछ टॉल, कुछ शॉर्ट। शॉर्ट वालों को लिया, वापस क्रॉस करके उगाया। नेक्स्ट जनरेशन में कुछ टॉल निकले, कुछ शॉर्ट निकले, और शॉर्ट को लिया वापस। नेक्स्ट जनरेशन करते 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 2-4 साल निकल गए, और तब उसको एक प्लांट ऐसा मिला जिसकी हर जनरेशन शॉर्ट होने वाली। सो बेसिकली दिस प्रोसेस ही यूज्ड टू फाइंड आउट अ प्योर शॉर्ट प्लांट। प्योर शॉर्ट मतलब उसके अंदर का डीएनए सिर्फ शॉर्टनेस से भरा है, मेल फीमेल दोनों। तो ऐसा एक फैमिली बनाया प्योर शॉर्ट का, जिसमें 50 मेल थे प्लांट्स, 50 फीमेल थे, एंड ही वॉज हैप्पी दैट ही कुड डू दैट। जो टॉल सिलेक्ट किए थे उनमें से बच्चे पैदा करवाए, कुछ टॉल कुछ शॉर्ट। शॉर्ट को फेंक दिया, टॉल को आगे बढ़ाया, वापस कुछ टॉल कुछ शॉर्ट। शॉर्ट को फेंक दिया, करते 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 ही गॉट प्योर टॉल प्लांट्स। सो आफ्टर फ्यू years he could confidently say that I have a pure short plant, जिसको अंदर अंदर रिप्रोड्यूस कराओ तो वो शॉर्ट ही होगा, एंड प्योर टॉल टॉल ही होगा। फिर उसने शुरू किया अपना एक्सपेरिमेंट। ही टुक अ प्योर टॉल प्लांट एंड ही टुक अ प्योर शॉर्ट प्लांट। मतलब एक ऐसा फैमिली लिया जिसमें सारे के सारे मेंबर्स हजारों साल से लंबे ही होते हैं, और दूसरा फैमिली हमेशा छोटे होते हैं। उनका फर्स्ट जनरेशन जब पैदा हुआ तो ही फाउंड आउट ऑल द प्लांट्स आर टॉल। तो इसका डायरेक्ट कंक्लूजन क्या है? टॉलनेस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। नेचर ने डिसाइड किया है कि टॉल होना अच्छा है, इसलिए जब भी टॉल डीएनए अवेलेबल है तो बच्चे टॉल हो जाते हैं। बट शॉर्ट फैमिली में शॉर्ट 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 बच्चे शॉर्ट ही होते हैं, क्योंकि उनके पास टॉल का डीएनए ही नहीं। बट बिकॉज टॉल एंड शॉर्ट गॉट मैरिड, टॉल वॉज डोमिनेंट, सिलेक्टेड बाय नेचर, एंड शॉर्ट वॉज रिसेसिव, रिजेक्टेड बाय नेचर। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो शॉर्ट ही होने वाला है, बट जब टॉलनेस का डीएनए अवेलेबल है तो प्लांट टॉल होगा। दिस वॉज ओके। शायद मेहनत करता तो मैं भी ये स्टडी कर सकता था, बट इसके बाद जो उसने किया दैट वॉज अमेजिंग। उसके बाद दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में से 2 प्लांट उठाए, एक मम्मी और एक पापा। तो अब ये फर्स्ट जनरेशन प्लांट में से एक एक उठाए, दोनों टॉल है, उनको क्रॉस करवाया। तो सेकेंड जनरेशन F2 जनरेशन जो है, दैट गेव हिम अ सुपर सरप्राइज। द सरप्राइज वॉज 3 टॉल, एक शॉर्ट निकला। और तब उसको ये कोई कोड वोड कुछ पता नहीं था, उसने बाद में बनाया। उसको सिर्फ हाइट दिखती थी, प्लांट्स दिखते थे। यूज्ड टू नोट डाउन कितने टॉल कितने शॉर्ट, F1 जनरेशन F2 जनरेशन। एंड व्हेन ही डिड ऑल दिस एंड देन ही फाउंड आउट द लॉजिक कि क्यों एक बच्चा शॉर्ट निकला और 3 लंबे निकले। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट ही कंक्लूडेड, द हिडन मीनिंग। प्योर टॉल के अंदर हाइट का 2 जीन्स है, दोनों सेम, कैपिटल T। और प्योर शॉर्ट स्मॉल t। जब ये अपने बच्चे पैदा करने के लिए कोई जीन देगा
उसके पास और कुछ है ही नहीं, वो कैपिटल टी देने वाला है। और ये मम्मी जब बच्चे को अपना जीन देगी, उसके पास छोटे टी के सिवाय कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो बनी, उसका डीएनए कॉम्पोजिशन ऐसा था जो यहां पे दिखता है। तो मम्मी का शॉर्ट डीएनए है लेकिन दिखता नहीं है। अमिताभ बच्चन का अभिषेक बच्चन में जैसे जया का हाइट दिखता नहीं है, अभिषेक इज टॉल, तो ये सारे टॉल हो गए F1 जनरेशन। हेंस ही कंक्लूडेड कि टॉल डोमिनेंट है। जब भी टॉल डीएनए है तो प्लांट टॉल होगा। बट द फन पार्ट स्टार्टेड व्हेन ही क्रॉस्ड अ टी पप्पा विद अ टी मम्मी। F1 जनरेशन के दो बंदों से रिप्रोड्यूस करवाया। अब ये पापा के पास देने के लिए दो चीजें हैं अलग अलग, और ये मम्मी के पास भी देने के लिए दो अलग अलग जीन्स हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो कितने कॉम्बिनेशन हुए? तो मैथ्स के हिसाब से पापा मम्मी टी, पप्पा का कैपिटल टी, मम्मी का स्मॉल टी, पापा का स्मॉल टी, मम्मी का कैपिटल टी, और पापा का स्मॉल, मम्मी का स्मॉल। दिस इज हाउ जीन्स आर गिवन टू द नेक्स्ट जनरेशन। 50-50 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आधा मम्मी देगी आधा पापा देंगे। और पापा के अंदर दो वैरायटी है तो आधा इनको मिलेगा आधा इनको मिलेगा। तो अब द हिडन जेनेटिक्स रिवील्स अ फैंटास्टिक फीचर। दिस इज अ प्योर टॉल प्लांट। मम्मी पापा दोनों प्योर टॉल नहीं थे, फिर भी बच्चा प्योर टॉल हो गया क्योंकि मम्मी पापा के अंदर कैपिटल टी दोनों में था। ये दोनों भी टॉल है बट प्योर नहीं है, अंदर उनका डीएनए मम्मी पापा जैसा है, मिश्रण, बट है तो टॉल। और ये एक बेचारा प्लांट वॉज अनलकी। वाई? क्योंकि बाय चांस, बाय फ्लूक, मम्मी का कम हाइट का डीएनए आया जो मम्मी में था, और पापा में भी कम हाइट का डीएनए था, और दोनों कम हाइट के डीएनए आ गए, इसलिए ये प्लांट एक बन गया शॉर्ट। एंड दिस strategy of how gene is distributed was given by Mendel. This is a very important answer of your book. You have to by heart this structure. और प्लांट भले ऐसे ब्यूटीफुल पत्ते वाले ड्रॉ ना करो, लेकिन टॉल और शॉर्ट प्लांट्स ड्रॉ करना पड़ेगा। इट्स ओके इफ यू ड्रॉ जस्ट लाइक दिस टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, बट यू विल हैव टू ड्रॉ। तो डोमिनेंट और रिसेसिव के साथ साथ जीन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्यों अचानक दो लंबे पेरेंट का बच्चा छोटा हो गया। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट अमिताभ एंड जया, अभिषेक, टॉल इज डोमिनेंट, बट मेरे मम्मी पापा के केस में बोथ आर शॉर्ट, फिर भी मैं टॉल, बिकॉज बाई चांस आई वॉज लकी, मम्मी के अंदर टॉल और शॉर्ट था, पापा के अंदर टॉल और शॉर्ट था, बट मेरे अंदर जो डीएनए आया दोनों का टॉल आया, इसलिए मैं उनसे भी लंबा हो गया, ऐसा कुछ। So this is the summary that Mendel took tall plants, उनको रिप्रोड्यूस करवाया, करवाया, और हर बार टॉल प्लांट उसने मन में मान लिया, हाइस आई गॉट अ प्योर टॉल प्लांट। फिर शॉर्ट प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाया, जनरेशन 1 2 3 4, 2-5 साल बाद उसको यकीन हो गया कि मेरे हाथ में जो प्लांट है वो प्योर शॉर्ट है। और प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट के बच्चे सारे टॉल निकले, तो उसने बोला कि टॉल इज डोमिनेंट। बट वो बच्चों में से जब नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन पैदा की
तो 75% टॉल थे बट 25% शॉर्ट निकले। और वो शॉर्ट इसलिए कि शरीर के अंदर हिडन जीन्स है जो तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है। I have personally chosen I don't want to have kids. The world's biggest problem is population, and I do not want to increase the population. Plus, I like to roam around the world. तो जब चांस मिलेगा तो मैं बच्चे को बड़ा करने में फीस भरो, ये करो, वो करो, मुझे नहीं करना है। I and my wife want to travel the world. That's why I chose I don't want to have kids. तो मेरे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? That you both should have one or two kids. Why? Because it's good for the planet. Why? Because I don't consider myself brilliant, but I'm a good individual, educated individual. I'm trying my best to contribute good things to the society. My wife is doing a good job. She is intelligent. I am intelligent. तो बच्चे का इंटेलिजेंट होने का चांसेस ज़्यादा है, and that intelligent child might improve the world, but I don't believe it because I know कि मेरे अंदर ऐसे भी जीन्स है जो बुद्धू के है, डम चीज़ के है, उसके अंदर भी है, बट दे आर रिसेसिव। लेकिन अगर हम दोनों के रिसेसिव जीन्स बच्चे में चले गए तो शायद वो बुद्धू निकलेगा और मेरे सिर पे बैठ जाएगा, जैसे तुम बैठे हो अपने मम्मी और पापा के सिर पे। दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट अ चाइल्ड। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई डोंट वॉन्ट अ चाइल्ड, बट ऐसा हो सकता है। दो ब्रिलियंट, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बना? उसके अंदर तो सचिन का डीएनए है, बट साथ में मम्मी का डीएनए मिक्स हुआ। अमिताभ अमिताभ है, अभिषेक अमिताभ नहीं बच सकता। तुम पेरेंट्स ग्रेट है तो बच्चा ग्रेट, नॉट नेसेसरी। बट उल्टा अब्दुल कलाम के मम्मी पापा वॉज नो बडी, पुअर पीपल, बट लुक एट अब्दुल कलाम। तो बायोलॉजी में देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, एनीथिंग कैन हैपन, बट वॉट इज हैपनिंग उसका एक्सप्लेनेशन मेंडल भाई साहब ने दिया। तो ये टेबल देखो, प्योर टॉल प्लांट अपने बच्चों को कैपिटल टी और कैपिटल टी दे सकता है। प्योर शॉर्ट प्लांट अपने बच्चे को स्मॉल टी दे सकता है। तो कॉम्बिनेशन जब बनता है तो सारे सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से मिक्स होता है। दैट्स F1 जनरेशन ऑल टॉल। बट F1 जनरेशन में ये टी पापा मम्मी दोनों के अंदर कैपिटल टी भी है और पापा मम्मी दोनों के अंदर स्मॉल टी भी है, उसका जब मिश्रण हुआ तो एक अनलकी बच्चा शॉर्ट बन गया। सो टेबल फॉर्मेट भी आना चाहिए। सो कंक्लूजन इज डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव ट्रेट या डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव जीन। In this explanation, both TT and TT are tall while only TT is short plant. In other words, a single copy of T is enough to make the plant tall. एक T आ जाए तो मैं लंबा हो जाऊंगा, therefore this is dominant. But छोटा बनना है तो दोनों स्मॉल टी चाहिए, इसलिए स्मॉल टी को बोला रिसेसिव और कैपिटल टी को डोमिनेंट। इन अ वेरी सिमिलर मैनर उसने हाइट में सक्सेस मिला, उसको बहुत अप्रिसिएशन मिला, देन वो फ्लावर के पीछे पड़ गया। तो उसने हाइट देखी ही नहीं, बोले हाइट मारना जो नहीं, मेरे को सिर्फ फ्लावर पे फोकस करना है। पर्पल फ्लावर पर्पल फ्लावर पर्पल फ्लावर पर्पल फ्लावर, प्योर पर्पल निकाला। वाइट फ्लावर वाइट फ्लावर वाइट फ्लावर वाइट फ्लावर वाइट निकाला। पर्पल वाइट मिक्स करते ही सारे बच्चे पर्पल। तो पता चल गया कि पर्पल डोमिनेंट है। बट F1 जनरेशन में से जब सेकेंड जनरेशन बनाई तो 25% फिर वाइट बन गए। इसका मतलब ये पर्पल प्योर नहीं था, उसके अंदर वाइट के जीन्स हिडन थे, इसलिए वाइट रिसेसिव। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब मेंडल दबंग बन गया। दबंग मतलब डेयरिंग।
डॉन बन गया जेनेटिक्स का. सो ही डिसाइडेड, व्हाई एम आई स्टडिंग वन कैरेक्टर, सिर्फ हाइट, सिर्फ फ्लावर, सिर्फ पी का कलर, और वो सिर्फ एक करके 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 उसने सब प्रूव कर दिया था. देन ही डिड अ डेयरिंग, मैं एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करूं. एक साथ दो मतलब शेप एंड कलर. सो शेप इज राउंड एंड रिंकल्ड एंड कलर इज ग्रीन एंड येलो. एंड व्हेन यू स्टडी टू थिंग्स टुगेदर, थिंग्स बिकम रियली कॉम्प्लेक्स. और 54 मिनट मेरा भाषण सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग बंद हो गया है, आई नो. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, and from here we'll continue. I'll show you how he created the chart of double characters, and also there he told कि कौन सा जीन कहाँ से आता है, कौन सा जीन डोमिनेंट है, वगैरह वगैरह.